Good morning students. Welcome to my YouTube channel Patna Maths Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये मेरा 4th वीडियो होगा और इस वीडियो में आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम एंड HCF. Okay, LCM means lowest common multiples and HCF means highest common factor. Students, really this is the full form of LCM and HCF. Okay, but in this full form concept is also hidden, but most of the students do not know what is the concept of LCM and HCF. Only they know LCM means lowest common multiples and HCF means highest common factor. Okay, so now today we will discuss about what is LCM and what is HCF. Okay, so first of all, LCM. Okay, so LCM, the smallest number, which is divisible by each of the given numbers is known as LCM. Okay, so the smallest number which is divisible by each of the given numbers is known as LCM. वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर को एलसीएम कहते हैं. ओके, विच इज डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, या ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द गिवन नंबर, you can add here exactly, is known as LCM. Okay, as example you can see, suppose 4, 6 and 12 are the numbers. Okay, and we have to find the LCM. We find the LCM by different methods, but in 10th class you have to study about prime factorization. Find the LCM by using prime factorization methods. Okay, so now 4 is written as 2 into 2, and now 6 is written as 2 into 3, and 12 is written as 2 into 2 into 3. So therefore LCM equal to, what will be the LCM? So 2 comes 2 times, highest power, so 2 square into 3 only one time, so this is equal to 4 into 3 equal to 12. So now 12 is the LCM of 4, 6 and 12. So you can see
12 is exactly divisible by 4. 12 is exactly divisible by 6 and 12 is exactly divisible by 12 also. Okay, so the smallest number which is divisible by each of the given number exactly is known as LCM. Yeah, we can also write LCM of the given number. LCM of the given numbers. Okay, so now this is about LCM. Now SCF. Highest common multiples. So the greatest number which divides each of the given numbers exactly is known as SCF of the given number. SCF of the given numbers. The greatest number which divides each of the given numbers exactly is known as HCF of the given numbers. ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्ड डिवाइड्स आ रहा है और यहाँ पर वर्ड डिविजिबल आ रहा है. मीन्स एलसीएम जो होता है वो एज ए डिविडेंड के फॉर्म में होता है और एचसीएफ होता है वो एज ए डिवाइजर के फॉर्म में होता है. एचसीएफ किसी को डिवाइड करता है और एलसीएम खुद डिविजिबल होता है. Understood? So as an example, suppose we have to find the HCF of 4, 6 and 12. So again 4 can be written as prime factorization of 4 is 2 into 2, 2 into 3 and 12 equal to 2 into 3. Okay, so now therefore HCF equal to common factorization. So now this is the common factorization. So I think 2 is the common factorization. Okay, 3 is not present in this. So HCF equal to 2. Now you can see 2 divides 4 exactly, 2 divides 6 exactly and 2 divides 12 also exactly. Okay, so this is about LCM and HCF. Now in your book, means in NCERT book, one of the most important formula, that is, you can see here, most important formula, that is LCM into HCF equal to product of numbers. All of you see, LCM into HCF equal to product of two numbers.
Okay, suppose LCM, SCF and two numbers are A and B. As example, A and B are two numbers. So there are how many terms in this formula? This is the equation. So now 1, 2, 3 and 4. There are 4 terms. And in mathematics, we already know if out of 4 terms are given in an equation and out of 4 terms 3 terms are given in an equation, then we can find the 4th term easily. Means अगर 4 टर्म्स में से कोई 3 टर्म्स अगर दिया हुआ हो तो चौथे टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं. So we can derive some more formulas with the help of this formula. Okay, so now LCM equal to A into B are divided by SCF. SCF equal to A into B divided by LCM, and A equal to LCM into SCF by B, and B equal to LCM into SCF by A. So these are very important formula for the board examination. Okay, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या तो MCQ हो सकता है या 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है. जनरली हम देखे हैं कि MCQ में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस फार्मूला को बिल्कुल लर्न कर ले, लर्न बाय हार्ट कर ले तो अच्छा होगा. ओके, तो ये हमारा रहा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है irrationality, proof of irrationality. We have already studied about irrational number. Okay, as we know that root 2, root 3, root 5 are irrational number. Irrational numbers. But anybody asks you why they are irrational numbers? ये सब irrational number क्यों है? So in 10th class we can give the proof why these numbers are irrational number by using contradiction method. Okay, so proof of irrationality of a number. Okay, so first of all we try to prove. Now the question will be prove that root, any number you can prove it, root 2 is an irrational number. Okay, so now proof, PROOF. So let root 2
be a rational number. All of you see carefully what you have to write. Okay, so let root 2 be a rational number. Now when root 2 is a rational number, so it can be written as in the form of p by q. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो देयरफॉर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p and q are integers P and Q are integers and P and Q are also co-primes. अब देखिए को-प्राइम्स की बातें भी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि व्हाट आर को-प्राइम्स नंबर. मीन्स P एंड Q क्या है, को-प्राइम्स भी है. मीन्स सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं कि P और Q में से कोई कटने वाला नहीं है. नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1. ओके, सो P एंड Q आर को प्राइम्स. अब देखो एस्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q होल स्क्वायर. सो देन इम्प्लाइज 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. सो देन इम्प्लाइज 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. सो देन इम्प्लाइज p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. Then implies q square equal to p square by 2. Mark the equation number 1. And all of you try to understand about this concept. Okay, q square, q is integer, so q square equal to p square by 2. अब यहाँ पर एक बात समझो, जब p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर आता है, यानी q इज इंटीजर, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर, यानी कोसेंट में इंटीजर आ रहा है. तो क्या बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? अगर कोसेंट इंटीजर आ रहा है, इसका एक और सिर्फ एक ही मतलब है कि p स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. डिड यू अंडरस्टैंड? p स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. सो देन इंप्लाइज p स्क्वायर इज कंप्लीटली divisible by 2. If p square is completely divisible by 2, then p is also divisible by 2. So then implies p is also divisible by 2. ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 भी लिख सकते हैं. ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2. ओके, अब क्या हुआ कि ये एक पार्ट हमने पूरा कर लिया.
अब दूसरे पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर लेट करेंगे। लेट Q, लेट P इक्वल टू 3m. You can take 3m, 3a, anything you can take. So 3m, where m is an integer. Okay, m is an integer. m भी क्या है? एक इंटीजर है. अब पुटिंग p इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1. अब इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ और इसी साइड कोशिश करूँगा लिखने का. तो पुटिंग p इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 क्या है? देखो, q स्क्वायर. सो q स्क्वायर इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ p, 3m होल स्क्वायर. Sorry, one thing here, not 3m, we should write here 2m, because we are going to prove root 2. okay, root 2 अगर प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग 2 ही लिखेंगे, 2m लिखेंगे. रूट 3 करेंगे तो 3m लिखेंगे. तो यहाँ पर हम लोग 2m ही लिखेंगे बाई 2. सो देन इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 4m square by 2, 2 2 जा. So then implies q square equal to 2m square. So then implies m square equal to q square by 2. So then implies q square is completely divisible by 2. All of you see carefully. m square equal to q square by 2. q square by 2 or m is integer. So result is integer. So now completely divisible. So then implies q is completely divisible by 2. Up now, all of you try to see the result. What happened here? P is completely divisible by 2 and Q is also completely divisible by 2. These statements contradict. P and Q are co-primes. देखो, यहां कह रहा है कि P और Q डिविजिबल नहीं है 1 को छोड़कर किसी नंबर से, को प्राइम्स है. लेकिन यहां हमने ये प्रूफ कर दिया कि P और Q दोनों 2 से डिविजिबल है. सो दिस इज द कंट्राडिक्शन. ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू ओनली राइट द स्टेटमेंट. एंड नाउ it is clear that both P and Q are divisible by 2, which contradicts the fact P and Q are co-primes. So our supposition is wrong. Hence root 2 is an irrational number. Proved.
यहाँ प्रूफ लिख देंगे। ये हो गया प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करें, तो ये बातें हो गई √2 का। अब देखो जनरली जो होता है एग्जाम में या तो √2 पूछता है या √3 या √5। वैसे पूछने के लिए किसी भी इरेशनल नंबर के बारे में पूछ सकता है, लेकिन जनरली आप जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, मैं अपना ये अनुभव बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है कि जनरली √2, √3 और √5 इसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। तो अगर सपोज करते हैं कि √5 होगा तो हम क्या करेंगे, √3 होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बाकी स्टेटमेंट सेम होंगे। केवल यहाँ पर क्या होगा कि P = जो 2m माने हैं उसको हम लोग 3m मानेंगे, 5m मानेंगे एंड सो। दूसरा नंबर कोई होगा तो वो मानेंगे। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए, क्योंकि ये लिखने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में यह फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का ये आता ही आता है। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि इसी से में हम लोग एक और इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं जो इस प्रकार है। अब देखो इसमें क्या है, प्रूव डैट थ्री प्लस 2√5 is an irrational number. Okay, this is the combined form of rational and irrational. इसमें क्या होता है कि कंबाइन में दिया हुआ रहता है, रेशनल और इरेशनल दोनों मिलाकर दिया हुआ होगा, और उसको प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। वैसे 9th क्लास में तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ चुके हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, but here we have to prove it. So how can we prove? Let us see. So let 3 plus 2√5 be a rational number. Same process, मिला जुला करके उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे. So 3 plus √5 be a rational number. So now it can be written as 3 plus 2√5 equal to P upon Q या A upon B, anything you can write. अब यहाँ पर लिख सकते हैं where P and Q are integers, ये तो रहेगा ही। अब देन इम्प्लाइज, अब देखो क्या, ये P/Q रेशनल है। अब ट्रांसपोज 3 डेट साइड, सो 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस 3। अब यहां पर देखो क्या, ये रेशनल नंबर है और ये 3 भी रेशनल नंबर है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑल इंटीजर्स आर अ रेशनल नंबर, सो 3 भी रेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ ध्यान से, रेशनल माइनस रेशनल
इक्वल टू क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल। मीन्स ये जो नंबर हुआ ये पूरा, और ये एक ऐसा नंबर हुआ रेशनल नंबर हुआ। अब दैन इम्प्लाइज √5 इक्वल टू p/q -3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऊपर वाला ये पूरा नंबर हमारा रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो देखो रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इक्वल टू ये भी रेशनल मिलेगा। ध्यान से देख लो, यह भी रेशनल मिलेगा। सो देन इम्प्लाइज √5 यानी ये पूरा नंबर रेशनल हो गया इक्वल टू अ रेशनल नंबर। This contradicts the fact √5। अभी हम लोग क्या प्रूफ किए, √2 इज एन इरेशनल नंबर, so then √3 is also an irrational number, √5 is also an irrational number। अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए कि कैसे होता है। तो √5 इज अ रेशनल नंबर यहां बता रहा है, तो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कंट्राडिक्ट विरोध कर रहा है, क्योंकि वहां रेशनल बता रहा है यहां इरेशनल बता रहा है। इसके पहले हम लोग शो फैक्ट √5 इज एन इरेशनल नंबर, शो आवर सपोजिशन, वही वाला फिर लिखना है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो यहां लेटेस्ट सपोज किया था वो गलत किया था, इरेशनल रेशनल कर लिया था, जो गलत किया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें करेक्शन कर लेना है, यानी सुधार कर लेना है। तो सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, so now hence 3 + 2√5 is an irrational number। okay, so these are the whole concept of the chapter real number। okay, real numbers। अब इसके बाद किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब आपके लिए अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। आपके लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज को। फिर भी मेरा जो अगला वीडियो होगा वो एक्सरसाइज बेस्ड वीडियो होगा। ओके, सो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।